हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नॉमेडिक उज्ज्वल। सो ये है इंटरैक्टिव व्लॉग नंबर 2 और मैं मिलने वाला हूँ मिस्टर शिव पंजाबी से, जो कि है स्पेशलिस्ट इन कमर्शियल फाइनेंसिंग। तो चलिए मिलते हैं। एक चीज़ बताना भूल गया, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो मिस्टर शिव पंजाबी, थैंक यू सो मच कि आपने Thank you टाइम for निकाला having me. एंड यू केम टू माय चैनल। और स्पेशली आज वीकेंड है और वीकेंड में टाइम निकालना इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि कोई हमें टाइम दे। नहीं, appreciate it. Thank you for you also taking out your time over the weekend. Appreciate it. Okay. It's a nice sunny day, so it was good to get out. दैट्स गुड। सो मिस्टर शिव पंजाबी, आपके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि मैं जब पहली बार आपसे बात की तो मुझे लगा कि शायद आप पंजाबी है, लेकिन उसके बाद पता चला कि तुम्हें तो गुजराती हो। तो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। So I'm from Punjabi family, but just like a lot of Punjabis are living in Gujarat, we are one of those families, and I was born and raised in Gujarat. That's why मेरा हिंदी के ऊपर भी कंट्रोल अच्छा है, पंजाबी में भी अच्छा है और गुजराती में भी अच्छा है। एक्चुअली मैं पंजाबी में यहाँ आके सीखा, अच्छा। बीसी में आके, विच इज़ इंटरेस्टिंग क्योंकि हमारी फैमिली में घर पे बात होती थी, बट इतना ज़्यादा कैच नहीं किया था लैंग्वेज। बट यहाँ आके लैंग्वेज में पकड़ थोड़ी और बढ़ गई है पंजाबी। So Shiv, you are supporting this year Navratri 2022, which has been organized by a SIDEC group. So उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? Well, it's a fantastic event Okay. being organized. We have seen this event since I was raised in India. Okay. बचपन से वहाँ पे बड़े हुए हैं। गुजराती नवरात्रि देखिए, गुजरात में बड़े हुए हैं, राइट? तो जो स्पिरिट इंडिया वाला जो यहाँ लाना चाहते हैं अजय भाई, विच इज़ अ फैंटास्टिक थिंग एंड वी आर हैप्पी टू सपोर्ट द इवेंट Okay. एंड इट्स लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेलिब्रेशन ऑफ द नवरात्रि। Okay. So जो भी वैंकूवर के आसपास जो लोग रहते हैं और यू वांट टू एंजॉय दिस नवरात्रि, सो मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैं लिंक ऐड कर दूंगा जहाँ से आप ये नवरात्रि के लिए आप पास कलेक्ट कर सकते हैं। सो आप है कमर्शियल फाइनेंस में स्पेशलिस्ट, तो उसके बारे में कुछ बताइए आप। सो जो मैं फोकस करता हूँ, आई फोकस ऑन मोर ऑन कमर्शियल रियल एस्टेट फाइनेंसिंग, कमर्शियल कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग, major size projects and so on, and then business financing, merger and acquisitions, and when businesses are looking to move out from the leases and buy their own properties to move the operation of the business, पता है कि आजकल लीज के रेट भी ऊपर ही जा रहे हैं, तो you are better off owning a property. Okay. Those things we look into. I talk to the client on daily basis. I have some inquiries every day talking about taking a real estate, moving into their permanent position rather than leasing the place, right? So those are all included in the commercial financing, and they get very complex based on what the structure of the deal is and what more details is. I can keep going on and on. Okay. So मैं कंपनी की वेबसाइट पे जा रहा था एंड यू आर द पार्टनर ऑफ सिटी ग्रीन फाइनेंशियल, तो उसके बारे में कुछ बताइए आप। So City Green Financials, I became a partner. I initially joined the company as a sub-broker, and then my partners were nice enough, they recognized the opportunity and they wanted me to join the team as well. So I became a partner almost a year and a half ago now. And I've been working as an independent commercial financing specialist for 3 years. Before that, I was working as for RBC and Scotiabank. Regarding the company, we are part of a bigger firm called Clear Trust Mortgages that has around 200 to 250 brokers involved all the way from Toronto, Alberta, and BC itself. And City Green is a part of their commercial division where we focus on mostly on commercial financing. We have done over 100 billion in lending combined as a company, and we have 8 partners right now within this commercial division, access to over 150 lenders, and we speak more than 10 languages. 4 लैंग्वेज तो मेरे पास है, बाकी मेरे पार्टनर्स वगैरह और दूसरे मेरे टीम मेंबर्स के पास है, जो कि कैंटनीज, मैंडरिन, कोरियन, आई थिंक देयर इज वन इटालियन एंड स्पेनिश एंड फ्यू मोर लैंग्वेजेस दैट आई माइट हैव मिस्ड. डोंट कोट मी ऑन इट, बट विल फिगर इट आउट. सो मिस्टर शिव, मैं आपकी वेबसाइट देख रहा था जब आपने बताई, और मैंने उसमें देखा कि लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन यू हैव डन, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपने किए, तो उसके बारे में कुछ बताइए आप। ट्रांजैक्शन डिफरेंट है डिपेंडिंग ऑन विच एरिया इट इज़ इन. कई ट्रांजैक्शंस लार्ज साइज इंडस्ट्रियल है, कई साइज लार्ज साइज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं. हमारी कंपनी ने कई प्रोजेक्ट किए हैं जिसमें 5 बैंकों ने सिंडिकेट करके फाइनेंसिंग की हुई है. सिर्फ 5 बैंकों ने मिलकर फाइनेंसिंग की है पूरे प्रोजेक्ट की. दैट्स लार्ज साइज ऑफ अ प्रोजेक्ट इट वाज. देयर आर ट्रांजैक्शंस वेयर देयर वाज अ सिंगल पर्सन ऑक्यूपाइंग अ प्रॉपर्टी फॉर हिज बिजनेस यूज़, क्योंकि आजकल लीज के रेट तुम्हें पता ही है कहाँ जा रहे हैं. तो लोगों को सिक्योरिटी चाहिए थी कि भाई उनका फ्यूचर में बिजनेस में रहना सस्टेन कर पाए.
तो उस तरह की भी फाइनेंसिंग होती है, उसको कहते हैं हम बिजनेस एक्विजिशन फाइनेंसिंग फॉर ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज़। ओके। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन योर साइज़, 10 टाउन हाउस बना रहे हैं, 10 सिंगल फैमिली बना रहे हैं, सब डिवीजन लॉट्स हैं, क्या है उसके ऊपर भी है। तो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम कीप्स ऑन वेरिंग फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम 150 मिलियन टू 10 मिलियन और 5 मिलियन और 6 मिलियन। देयर आर ट्रांजैक्शंस जहाँ पे बिजनेस किसी को एक्वायर किया है, जैसे कि एक मेरा क्लाइंट था, उन्होंने मल्टीपल फ्रेंचाइजी की लोकेशंस एक्वायर की थी। सो लार्ज साइज ट्रांजैक्शन, क्योंकि उसमें 4-5 फ्रेंचाइजीज थी। उसके अलावा किसी के इनकम प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी थी जिसके अंदर एक पूरा बहुत बड़ा लार्ज साइज मॉल था, उसके टेनेंट के कैश फ्लो के बेस के ऊपर उनकी फाइनेंसिंग सिक्योर की गई थी। और कोविड के टाइम रेट्स वगैरह काफ़ी लो थे, तो उस टाइम पे काफ़ी लो रेट पे वो चीज़ें सिक्योर हुई थी। ओके। और वो सारी कैप रेट के बेस पे होती है। वो उसके लिए तो काफ़ी लंबी कॉन्वर्सेशन जाएगी। ओके। सो मिस्टर शिव, आपने जो ये सर्विस बताई तो वो एक बैंक भी कर सकता है, तो मतलब कोई क्यों बैंक के पास ना जाए और कोई क्यों आपके पास आए? आजकल की जो मार्केट है ना, और जो बीसी का मार्केट है, वो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है उसके अंदर। उनके पास रिक्वायरमेंट्स, जो ड्यू डिलिजेंस पीरियड होता है कभी भी कोई भी एक्विजिशन में, वो काफ़ी छोटे होते जा रहे हैं, राइट, लाइक विद इन अ वीक और 1 मंथ एंड सो ऑन, राइट। सो यू डोंट हैव अ, व्हेन यू वर्क विद वन लेंडर, तो उसमें क्या होता है, अगर वो लेंडर ने मना कर दिया, देन यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस, देन यू आर बैक टू जीरो एंड यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग फॉर अ डिफरेंट deal because the seller won't allow you the extension. When you work with someone like me, you have an option of other lenders. So then we will discuss all different lenders that are coming to the table, what sort of pricing they are giving. So also the pricing is also most important factor of any decision, because then the lenders will compete to give you the best product and best pricing. The pricing in the sense the interest rate, fees and so on. That's the other thing. And when you work with someone like me, we want to talk more about what your future plans are rather than just talking about a particular transaction. तो जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हमें पता रहता है कि भी आगे जाके क्या होने वाला है और आपने क्या करना है नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका। तो उसके बेस पे हम सिक्योरिटीज़ अरेंज करते हैं, लेंडर के साथ नेगोशिएट करते हैं। इट्स नॉट अबाउट जस्ट गेटिंग द लोन अमाउंट, इट्स ऑल्सो अबाउट व्हाट काइंड ऑफ सिक्योरिटी यू आर प्रोवाइडिंग देम। जैसे कि ऑपरेटिंग बिजनेसेस में सबसे थोड़ा सा एक्सपेंसिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो जाती है, वो रिव्यू एंगेजमेंट है, जिसकी कॉस्ट होती है 15 से $25,000 रफली। आई डोंट नो, बेस्ड ऑन व्हाट योर कंपनी डज एंड व्हाट नॉट। कई लेंडर्स होते हैं, दे आर ओके विद नोटिस टू रीडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट कुड कॉस्ट एनीवेयर फ्रॉम 1500 to 2000, बट दोज थिंग्स आर ऑल negotiated and talked about it at the beginning rather than talking it about a year after when you will see the impact that hey, I'm paying a lot more for the cost of borrowing, right? So there are a lot of factors. Then also getting involved, जैसे हमें पता है as soon as you get a transaction involved, who we need to go with. We need to order appraisal, we need to order environmental, we need to you need to start talking to this lawyer, your realtor should start getting involved in this, should at the same time parallelly start talking to the insurance broker too, because in the commercial side, the insurance is also a complex piece. काफ़ी बहुत सारे रीजंस हैं। यू लाइक जो रिलेशनशिप बिल्डिंग जो इम्पोर्टेंट होती है वो हमारी इंडस्ट्री में काफ़ी है। एंड वंस वी बिल्ड अ रिलेशनशिप वी कंटिन्यू टू कीप ग्रोइंग एंड देन आई कैन टेल यू व्हाट यू नीड टू डू नेक्स्ट टू ग्रो टू द नेक्स्ट लेवल। ओके ओके। सो मतलब अगर देखा जाए तो ऑफकोर्स मतलब बैंक आपकी पोर्टफोलियो देखेंगी, उनके जो गाइडलाइंस है वो चेक करेंगे, अगर वो आप एलिजिबल नहीं हो तो तुरंत मना कर देंगे। सो तुरंत भी नहीं करेंगे, शायद लॉन्ग टाइम लेंगे, 2-3 हफ्ते भी ले सकते हैं, 4 हफ्ते भी ले सकते हैं, राइट, डिपेंडिंग ऑन उनके पास कितनी कैपेसिटी है, कौन अवेलेबल है कौन नहीं है, वेकेशन पे कोई है कोई अवेलेबल नहीं है, वो बंद, योर बैंकर इज अवेलेबल, देयर क्रेडिट ऑफिसर इज नॉट अवेलेबल, सो दोज थिंग्स कुड आल्सो हैपन। ओके, तो मतलब यही चीज़ है कि अगर बैंक के पास जाओगे तो ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग लिमिटेड सोर्स आपके पास हो जाएगा, बट अगर इफ यू कम टू मिस्टर शिव, ऑफ कोर्स आपके पास सॉल्यूशंस होंगे। अगर वर्कआउट नहीं हो सकता तो ये कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर हो ही जाएगा। एग्जैक्टली, देयर इज ऑलवेज अ वे अराउंड इट, बट डिपेंड ऑन हाउ मच यू आर विलिंग टू पे फॉर इट। सो मिस्टर शिव, जो हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं, अगर वो कुछ बिजनेस करना चाहते हैं यहाँ पे और ऐसे कुछ जो सर्विसेज है उनकी कुछ रिक्वायरमेंट है, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करोगे? कोई बेस्ट एडवाइस तो यही दूंगा कि फोकस ऑन योर कैश फ्लो, फोकस ऑन योर रेवेन्यू, नंबर्स आर द वन दैट टॉक्स द रियल बिजनेस, कि भाई एक्चुअली चल क्या रहा है, इट्स द ब्लड लाइन। अगर कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है देन फाइनेंसिंग इज़ पॉसिबल, इवन थोड़े बहुत प्रोजेक्शंस वगैरह पे भी काम करते सकते हैं, बट जो हिस्टोरिकल रेवेन्यू है वो हमें काफ़ी कुछ बताता है। सो कैश इज़ द किंग एंड कैश फ्लो इज़ व्हाट यू नीड टू फॉलो. Try to increase your revenue and reduce your expenses. That's the best way to look at it. But again, if you have any questions, you can send me the numbers. I'll look at it and I'll tell you what's possible and what can be done. Okay.
सो थैंक यू शिव, बहुत ही मज़ा आया ये Thank you very much. कॉन्वर्जेशन Yeah. करके, और हमारे व्यूअर्स को ऑफकोर्स बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, अगर कमर्शियल फाइनेंस की अगर कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप ऑफकोर्स मिस्टर शिव को कांटेक्ट कर सकते हैं। उनकी पूरी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। थैंक यू वंस अगेन। Thank you. Enjoy your summer, guys. Take care. सो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं इंटरेक्टिव ऐसे व्लॉग बहुत सारे और आगे आने वाले हैं। तो अगर आपको भी अगर कोई स्पेसिफिक अगर व्लॉग चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।